Hello friends, so let's discuss the introduction to the pharmacology. Here we discuss the kind of definition of pharmacology, and after that the pharmacokinetics, pharmacodynamics we will deal here. Along with that bioavailability we will discuss, half-life of the drug we will discuss, doses, or you can say dose, what is the difference between dose and doses. These all points related in our pharmacology that we will discuss here. Okay, so without wasting our time, let's begin our today's class. Now first of all, the meaning of pharmacology means the study of drug. Okay, the study of science of drug, that is called as a kind of pharmacology. Pharmac is nothing but drug, and logy means the study of drug, that is called as a pharmacology. The pharmacology is the science, is the study of the drug and their action on the body. In simple words, if I want to explain the definition of pharmacology, that nothing but pharmacology is the study of drug and their action on the body. Okay, the pharmacology include the various terms like pharmacokinetics, pharmacodynamics. ओके एंड ये जो एक्शन करने वाला है ड्रग, अल्टीमेटली वो फार्मेसी वगैरह से प्रिपेयर हुआ रहता है. ओके, तो प्रिपेयरिंग सुचेबल डोसेज फॉर्म्स, फार्मेसी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स, दीज आर द यू कैन से इम्पॉर्टेंट हेड पॉइंट्स विच कम अंडर इन द फार्माकोलॉजी. ओके, तो फार्माकोलॉजी में जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स. तो वेन एवर वी आर टेकिंग एनी ड्रग्स, so what the drug does to the body, that is called as the pharmacodynamics. The effect of the drug, that is called as the pharmacodynamics, and what the body does to the drug. Okay, यानी कि whenever if we are consuming any drug, तो how the body will excrete the drug, how the body will metabolize the drug. Okay, how the you can say that particular drug get absorbed into the body. तो absorption, metabolism, distribution, and you can say excretion, these are the four important points that is come under the pharmacokinetics. Okay, pharmacodynamics means a kind of what, whenever we are taking any drugs, तो ड्रग का जो रिएक्शन होने वाला है, फिर ड्रग का जो इफेक्ट रहने वाला है, वो इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, फार्माकोडायनेमिक्स बोलेंगे. ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स ड्रग कैसे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे मेटाबोलाइज होगा और कैसे एक्सक्रीट होगा, ये अंडर हम फार्माकोकाइनेटिक्स डील करते हैं. ओके, तो फार्माकोथेरेपेटिक्स आप देख सकते हो, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द क्योर ऑफ डिसीज और रिलीफ ऑफ सिम्टम्स एंड इंड्यूसेस द ड्रग ट्रीटमेंट. फार्मेसीज अल्टीमेटली क्या होता है, जहाँ पे मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर होते हैं. इट इज़ अ साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, प्रिजर्वेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहिए कि काइंड ऑफ क्या है, डेफिनेशन ऑफ ड्रग इंपॉर्टेंट है, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स आपको इंपॉर्टेंट है. तो ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज और इज इंटेंडेड टू बी यूज टू मॉडिफाई द फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ यू कैन से फॉर एनी डिसीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट्स. ओके, तो ड्रग क्या है, ड्रग इज एनी सब्सटेंस or product that is used to change the physiological system or change the pathological state of the particular disease to get the benefit of the recipients. Okay, that is called the drug. Whenever we are taking any kind of drug, like we are taking Dolo 650, we are taking you can say Crocin, we are taking a kind of some painkiller like diclofenac or Dynapar tablets or Tramadol tablets, or you can say we are taking Dotinam. So these are the tablets, definitely they will produce their actions. तो काइंड ऑफ जो उसका एक्शन है, एक्शन ऑफ दैट ड्रग आने के बाद जो हमारे सिम्टम्स रहने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, सबसाइड जाएंगे. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं. ओके, तो पॉइजन इन स्मॉल डोसेस आर द बेस्ट मेडिसिन एंड यूजफुल मेडिसिन इन टू लार्जेस्ट आर द पॉइजनस. दैट यू हैव टू रिमेंबर, वेरी यू कैन से पॉपुलर लाइन ऑफ अवर विलियम विथरिंग. ओके, तो ड्रग के नेम अलग अलग दिए गए थे, जेनेरिक नेम, स्पेशली यू शुड नो दैट देयर आर 3 नेम ऑफ ड्रग नेम. ऑलरेडी मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाया है. जेनेरिक नेम, केमिकल नेम, एंड देयर इज अ ब्रांड नेम और ट्रेड नेम और यू कैन से प्रॉपर्टी नेम. तो देख सकते हो यहाँ पे नॉन प्रॉपर्टी नेम हमारा जेनेरिक नेम रहता है, और ब्रांड नेम दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर्टी नेम, और ट्रेड नेम दैट इज गिवन बाय आवर एवरी कंपनीज. ओके, लाइक पैरासिटामोल, लाइक
पैरासीटामोल को अलग अलग नाम दिया गया है, क्रोसिन है, कैल्पोल है, ओके, काइंड ऑफ डोलो है, अलग अलग नाम दिया गया है, लानोलियार है, अलग अलग नाम दिया गया है पैरासीटामोल को। तो अलग अलग कंपनियां प्रोड्यूस करती हैं, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग देयर नेम। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम बोलते हैं, या तो ट्रेड नेम बोलते हैं, या फिर उसको प्रॉपर्टी नेम बोलते हैं। जेनेरिक नेम क्या है हमारा, पैरासीटामोल क्या है, जेनेरिक नेम है। केमिकल नेम अल्टीमेटली मीन्स क्या होता है, केमिकल नेम मीन्स जो भी केमिकल्स उसके अंदर यूज हुए रहते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पैरासीटामोल, दैट इज कॉल्ड द केमिकल नेम। तो एनी ड्रग हैज 3 नेम, केमिकल नेम, जेनेरिक नेम एंड ब्रांड नेम, ओके। तो आप देख सकते हो केमिकल नेम ऑफ एनी ड्रग लाइक अल्प्लाजोलम की अगर मैं बात करूँ तो 1,4-बेंजोडाइजेपिन ये हमारा इसका केमिकल नेम है, जेनेरिक नेम ये ये देखिए अल्प्राजोलम है, और ब्रांड नेम इसका अल्प्रैक्स आर। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे। तो वी हैव अ काइंड ऑफ 1 केमिकल नेम, 1 जेनेरिक नेम ऑफ एनी ड्रग, बट देर इज अ नंबर ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट्स, ओके, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ विच कंपनी दे आर प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर ड्रग, ओके। नाउ you should know again one more things कि drug is not producing artificially, drug is not only the synthetic, drug is also produced by the many kind of animals, और you can say आप देख सकते हो मिनरल्स वगैरह के थ्रू भी हमारे ड्रग्स बनते हैं, एनिमल वगैरह के थ्रू भी ड्रग बनते हैं, लाइक काइंड ऑफ DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से हम इंसुलिन वगैरह हम प्रिपेयर करते हैं, ओके। देन प्लांट सोर्स हमारे बहुत सारे ड्रग होते हैं, लाइक मॉर्फिन है, क्यूनिन है। देन सिंथेटिक डिजॉक्सिन भी हमारा रहता है प्लांट सोर्स मेडिसिन, प्लांट सोर्स ड्रग्स में, ओके। सिंथेटिक में आप देख सकते हो एस्पिरिन है, सल्फोनामाइड्स है, तो ये सभी हम सिंथेटिक है, ये सभी हम प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स वगैरह। बट डेफिनेटली यू शुड नो कि देयर आर सम ड्रग्स दैट इज मिनरल ओरिजिन, दैट इज सम आर एनिमल ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह के थ्रू हम एंटीबायोटिक, एंटी फंगल्स एजेंट्स वगैरह हम प्रिपेयर करते हैं। ड्रग प्रोड्यूस बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग लाइक ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स, ओके। These are the some important drugs we are producing from the various sources like minerals हो गया, animals हो गया, okay, plants है, synthetic जो कि fully synthetic है, जो human made या फिर man made जो drug रहेंगे that is synthetic drug, okay। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह लाइक फंगस है या फिर यू कैन से बैक्टीरिया है, तो फ्रॉम दैट ऑल्सो वी आर प्रोड्यूसिंग अ काइंड ऑफ एंटीबायोटिक और एंटी फंगल एजेंट्स वगैरह वगैरह, ओके। ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस यू शुड नो कि कोई भी ड्रग वगैरह पहले यू कैन से सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट करने के बाद काइंड ऑफ उसके ट्रायल वगैरह चलते हैं और बाद में ही ड्रग क्या होता है अल्टीमेटली डेवलप होता है। नाउ यू शुड नो द डोज वर्सेस डोसेस फॉर्म। डोज मतलब क्या होता है, कितना हमें उसको देना है, ओके, काइंड ऑफ डोज एंड डोसेस, कितने बार देना है उसको हम डोसेस बोलते हैं, और कितना देना है दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ अमाउंट, ओके, दैट इज कॉल्ड अ डोज। तो द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड एट वन टाइम 500 मिलीग्राम ऑफ पैरासीटामोल, ये हमारा काइंड ऑफ एग्जांपल मैंने लिया है, और डोसेज देख सकते हो यहाँ पे 500 मिलीग्राम ऑफ पैरासीटामोल TID, दैट नथिंग बट 3 टाइम, ओके, थ्राइस इन अ डे, आपको यहाँ पे फॉर 3 डे। तो द अमाउंट ऑफ द ड्रग दैट शुड बी गिवन ओवर टाइम, तो TID ये इसकी क्या है फॉर 3 डे, ये इसका क्या है डोसेज है, और कितना डोज है 500 मिलीग्राम। तो क्वांटिटी कितनी लेनी है वो उसको हम डोज बोलते हैं, और कितने बार लेना है, कितने दिन तक लेना है उसको हम क्या बोलते हैं डोसेज बोलते हैं। अगेन ये आपको पता होना चाहिए, डोज वर्सेस डोसेज फॉर्म, ओके। नाउ देर आर नंबर ऑफ ड्रग्स available in the markets in the various forms like tablets, capsules, injections, infusion, solutions, cream, suspension, aerosols. There are number of, or you can say there are various form of medicine, various form of drug are available in the markets, okay। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो यू कैन सी हियर एंट्रल रूट है, पैरेंटल रूट है, टॉपिकल रूट है। एंट्रल रूट की अगर मैं बात करूँ, एंट्रल रूट मीन्स होता है काइंड ऑफ इंटेस्टाइन वगैरह के थ्रू वो एब्जॉर्ब होकर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। पैरेंटल मीन्स देर इज नो नीड ऑफ एब्जॉर्प्शन, इट डायरेक्टली एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंड टॉपिकल मीन्स we are applying over the, you can say topically, okay, we are applying the locally, that is called the topical application of the drug। तो एंट्रल में ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, ये हमारे एग्जांपल्स आते हैं। पैरेंटल में इंट्राथिकल है, इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटेनियस है, ओके, दिस आर द यू कैन से पैरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। टॉपिकल में इंट्रानेजल है, इनहेलेशन है, इंट्रावजानल है, या फिर यू कैन से कोई लोकल एप्लीकेशन है, कोई अगर ऊंट्स वगैरह या फिर कोई कट वगैरह है तो डेफिनेटली वी आर अप्लाइंग एनी क्रीम्स। तो क्रीम्स वगैरह क्या है, दे आर द टॉपिकल फॉर्म ऑफ मेडिसिन, ओके। तो IV हम काइंड ऑफ देख सकते हो यहाँ पे सम एंगल लाइक 45 डिग्री हम एंगल मेंटेन करते हैं। सबक्यूटेनियस
आप देख सकते हो सबक्यूटेनियस, ये अगेन आईवी जो है ये हम 20 to 25 डिग्री एंगल में हम देते हैं। सबक्यूटेनियस ये आप देख सकते हो 45 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली है। और इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन हम देते हैं डायरेक्टली मसल में हम देते हैं, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। तो सबक्यूटेनियस हम फैटी लेयर में देते हैं और इंट्रामस्कुलर डायरेक्टली हम काइंड ऑफ देख सकते हो यहाँ पे मसल में देते हैं, और इंट्रावीनस जो रहता है वो डायरेक्टली हम वेन्स में देते हैं। ओके, तो देख सकते हो सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ, कॉस्ट भी आईवी रूट का ज़्यादा रहता है, फॉलोड बाय आईएम, फॉलोड बाय सबक्यूटेनियस एंड फॉलोड बाय ओरल। तो लोएस्ट जो कॉस्ट होता है हमारा ओरल रूट का होता है। और अगर मैं इजीली अगर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली ओरल इज़ अ सेफेस्ट रूट ऑफ यू कैन से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। ओके, देन फॉलोड बाय सबक्यूटेनियस, फॉलोड बाय इंट्रामस्कुलर, और सबसे ज़्यादा सीवियर जो पेन होता है ड्यूरिंग द इंट्रावीनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो सेफ्टी during the drug administration, oral followed by subcutaneous followed by intramuscular followed by intravenous. Okay, now अगर मैं रूट वाइज अगर मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा ड्रग कब ऑब्जॉर्व होता है, तो यू शुड नो अगेन द बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी मीन्स अ काइंड ऑफ कितना अमाउंट ऑफ ड्रग इज रीचिंग इन आवर ब्लड स्ट्रीम, दैट इज कॉल्ड द बायो अवेलेबिलिटी। ओके, तो इंट्रा जो हमारा ये वेस्कुलर है, तो इंट्रावीनस आप देख सकते हो डायरेक्टली अगर हम देंगे तो डेफिनेटली 100% इसकी बायो अवेलेबिलिटी रहती है। इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस की दोनों ही इक्वल बोला गया है, और ओरल की सबसे कम होती है। ओरल में सबसे कम क्यों रहती है? बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग अब्जॉर्प्शन सम अमाउंट ऑफ ड्रग दे गेट लॉस्ट, और बाद में फिर उसका मेटाबोलाइजेशन होता है इन द लीवर। अगेन ड्यूरिंग द मेटाबोलिज्म साइटोक्रोम P450 एंजाइम दे मेटाबोलाइज द एनी काइंड ऑफ ड्रग। ओके, तो एक्टिव से इनएक्टिव, इनएक्टिव से एक्टिव, कोई भी ड्रग को फॉर्म करने के लिए हमारा लीवर में मेटाबोलाइजेशन होना जरूरी होता है। तो ड्यूरिंग दिस मेटाबोलाइजेशन अगेन देयर इज अ सम अमाउंट ऑफ ड्रग दे गेट लॉस्ट। ओके, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ अप्रॉक्सीमेटली 40 to 30 or you can say 30 50-40 a kind of availability of that drug is reaching into the bloodstream, and that's why intravenous जो हम ड्रग देते हैं 100% उसकी बायो अवेलेबिलिटी रहती है। दैट मीन्स कि 100% वो पूरा ब्लड में पहुंच रहा है। बट वेन एवर वी आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ ड्रग थ्रू ओरली और जैसे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम कोई ड्रग लेते हैं तो डेफिनेटली देर इज नो 100% ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। यू शुड नो दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप देख सकते हो ऑनसेट ऑफ एक्शन भी इंट्रावेनस में इमीडिएट मिलता है, फॉलोड बाय आईएम, फॉलोड बाय सबक्यूटेनियस, एंड ओरल में तो बहुत ही डिले होता है। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2 hour 3 hour for the absorption of that drug, and after that 2 to 3 hour there is a, you can say, onset of action. But definitely whatever we are giving intravenously or whatever we are giving the injection into the intravenously, definitely they will directly into the they will directly go into the bloodstream, and there is a begin of the onset of the action. Okay, patient compliance again the oral सबसे simple वे होता है इसको लेने का, फॉलोड बाय सबक्यूटेनियस, फॉलोड बाय इंट्रामस्कुलर एंड फॉलोड बाय आईएम। ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स अल्टीमेटली है क्या, अगर इसको मैं डील करूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ओके, बॉडी ड्रग के ऊपर कैसे करता है, यानी कि बॉडी जो ड्रग हम लेने वाले हैं या फिर जो हमने ड्रग लिया है कैसे उसका एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और यू कैन से फर्दर जो प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है, दैट इज कॉल्ड द फार्माकोकाइनेटिक्स। द स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, दैट इज कॉल्ड द फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इट इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीजन ऑफ द ड्रग, दैट इज कॉल्ड द फेट ऑफ द ड्रग। ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन मीन्स हाउ द ड्रग इज मूव इनटू द ब्लड स्ट्रीम from the site of administration, that is called as absorption. Distribution, how much drug is moved to the various body tissues depending on the blood flow through the tissues, that is called the distribution. Metabolism में kind of metabolize होता है वो कोई भी हमारा drug in the liver, how the drug is altered or broken down, that is called the metabolism. And excretion, तो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में बनना या फिर एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में किसी भी ड्रग का बनना, that is called the metabolism. Excretion, how much of the drug is removed from the body, that is called the excretion. The absorption, distribution, metabolism, excretion, these 4 important concepts or you can say 4 important points come under the pharmacokinetics. तो आप देख सकते हो there is a biological barrier, but definitely site of administration ड्रग और डायरेक्टली इट रीच इनटू द वैस्कुलर सिस्टम। तो दिस आर द बायोलॉजिकल बैरियर, एब्जॉर्प्शन वगैरह के थ्रू ये क्रॉस होकर डायरेक्टली दे आर रीचिंग इनटू द वैस्कुलर सिस्टम। ओके, तो दे आर, यू कैन सी हियर, अगर मैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग की अगर मैं बात करूँ तो फास्टेस्ट जो एब्जॉर्ब होता है हमारे ओरली जो हम ड्रग लेते हैं, तो फास्टेस्ट जो एब्जॉर्ब होता है लिक्विड, एलिक्सर या फिर सिरप वगैरह जो फॉर्म होता है ड्रग का,
डेफिनेटली दे आर फास्टेस्ट एब्जॉर्ब. ओके, तो फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ which kind of drug is more by orally, definitely liquids preparation like elixirs, syrups वगैरह जो रहते हैं वो डायरेक्टली फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है इनका, फॉलोड बाय सस्पेंशन, फॉलोड बाय पाउडर, फॉलोड बाय कैप्सूल्स, फॉलोड बाय टैबलेट, फॉलोड बाय कोटेड टैबलेट्स एंड आफ्टर दैट एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स. ओके, तो आप देख सकते हो एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो होते हैं वो बहुत ही स्लोली वो एब्जॉर्ब होते हैं, और जो फास्टेस्ट जो एब्जॉर्प्शन है वो कोई भी लिक्विड प्रिपरेशन लाइक एलिक्सर्स, सिरप्स वगैरह जो नॉर्मली जो अवेलेबल है मार्केट्स में, वो उनका क्या होता है बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है इन आवर स्टमक्स. ओके, या फिर जीआईटी ट्रैक्ट्स में. तो आईवी रूट्स में आप देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे ग्राफ्स वगैरह अवेलेबल होते हैं. तो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट दैट आई विल डिस्कस, अदरवाइज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. तो ये जो ग्राफ्स है यहाँ पे देख सकते हो एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ये डिनोट करता है, एंड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ये यहाँ पे क्या होगा थेरेपेटिक एक्शन होने वाला. ओके, थेरेपेटिक एक्शन इतने समय तक रहेगा, एंड ये एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोड बाय मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग. ओके, कोई भी ड्रग मेटाबोलाइज होके डायरेक्टली एक्सक्रीट होती है, दैट यू शुड नो, एंड एवरी ड्रग हैज़ देयर हाफ लाइफ. ओके, हाफ लाइफ क्या है वो हम देखते हैं फर्दर स्लाइड में, डोंट वरी. ये आप यहाँ पे देख सकते हो बायो अवेलेबिलिटी. Bioavailability means bioavailability is a fraction of administered dose of the drug that reaches the systematic circulation in the unchanged form. Okay, तो bioavailability of the IV route is 100%, but oral route का ये वैरी करता है ड्रग टू ड्रग ये वैरी करता है हमारा बायोअवेलेबिलिटी, बट डेफिनेटली IV रूट का जो बायोअवेलेबिलिटी होता है वो 100% होता है. ओके, तो कितना ड्रग काइंड ऑफ ब्लड में पहुंचा हुआ है दैट इज कॉल्ड द बायोअवेलेबिलिटी. तो आप देख सकते हो डोज जो हमने लिया है ओरली, अगर मैं बात करूँ कुछ ड्रग हमारे जीआई ट्रैक में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ओके, एंड कुछ डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी जो ड्रग बचता है वो कुछ ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होता है. ओके, और जो कुछ बचता है एब्जॉर्ब होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गट वॉल में काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एब्जॉर्ब होने के बावजूद भी कुछ गट वॉल में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कुछ गट वॉल में डिस्ट्रॉय हो जाने के बावजूद जो बचे हुए रहते हैं जो कि म्यूकोजल लेयर में जाने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, डेफिनेटली वो लीवर में जाने के बाद क्या होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो अ काइंड ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ ड्रग इज रीचिंग इनटू द सर्कुलेशन एंड दैट इज कॉल्ड एज अ बायोअवेलेबिलिटी. बट ऐसा आईवी रूट में देखने को नहीं मिलता है. आईवी रूट में जो आपने ड्रग दे दिया वो डायरेक्टली 100% क्या हो रहा है वो हमारे ब्लड में जा रहा है. तो नो, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस वी हैव टेकन दिस अमाउंट ऑफ ड्रग बट इट एंटरिंग इनटू द सर्कुलेशन दिस अमाउंट ऑफ ड्रग. ओके, तो टू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इतना अमाउंट आ रहा है, और आप देख सकते हो डोज कितना आपने लिया है. तो बायोअवेलेबिलिटी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द बायोअवेलेबिलिटी क्या क्या है, डोसेज फॉर्म, केमिकल फॉर्म्स. ओके, देन डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी ओरल है सबक्यूटेनियस है उसके ऊपर भी डिपेंड होगा. प्रेजेंस ऑफ फूड्स और ड्रग इन द जीआई ट्रैक्ट्स, फर्स्ट पास इफेक्ट्स. ओके, एंड यू कैन से extent of the drug metabolism before reaching the systematic circulation. Okay, again these are the important factors that influence the bioavailability. Okay, now if I discuss the kind of drug half life. Okay, what is mean of drug half life? तो ड्रग हाफ लाइफ मतलब क्या होता है कि कोई भी ड्रग अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है, सपोज मैं 100 मिलीग्राम का कोई टैबलेट ले रहा हूँ तो वो 50 मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा. सपोज वो काइंड ऑफ 2 आवर में 50 मिलीग्राम में क्या होता है हाफ लाइफ रहती है उसकी, यानी कि 50 मिलीग्राम लॉस हो जा रहा है. ओके, तो कोई भी 100 मिलीग्राम में अगर सपोज कोई भी मेडिसिन ले रहा हूँ, सपोज डायरेक्टली वो 100 मिलीग्राम हमारा ब्लड में जा रहा है, तो 100 मिलीग्राम ब्लड में जाने के बाद 50 मिलीग्राम वो हो जा रहा है इनटू द इन विद इन द 2 to 3 आवर. तो 2 to 3 आवर क्या इसका हाफ लाइफ है. तो विद इन 2 to 3 आवर पर्दे जो नेक्स्ट 2 to 3 आवर होगा वो उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 50 मिलीग्राम जो है वो उसका हाफ 25 मिलीग्राम हो जाएगा इन द नेक्स्ट 2 to 3 आवर. ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं हाफ लाइफ बोलते हैं. तो हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड टू reduce the plasma concentration to 50% of its original value. So will determine the dosing requirement and how long a drug will remain in the body. That is we can guess with the help of a drug half life. Okay, so use in determining the dosing interval. तो आप यहाँ पे देख सकते हो काइंड ऑफ टी हाफ, अगर कोई भी ड्रग का 50% ड्रग इज एलिमिनेटेड, नेक्स्ट टी हाफ में अगेन 50% जो बचा हुआ उसका जो यू कैन से 50% दैट इज नथिंग बट डेफिनेटली काइंड ऑफ टोटल अमाउंट 75% ड्रग इज एलिमिनेटेड. ओके, नाउ 25 जो बचा हुआ उसका 50% 12.5%. ओके, अभी वो नेक्स्ट टी हाफ पीरियड में क्या होगा लॉस हो जाएगा. तो
टी हाफ विल बी द सेम, जैसे कि मैंने आपको बताया 100 मिलीग्राम मैंने कोई ड्रग लिया है, 50 मिलीग्राम बच रहा है 2 घंटे में। नाउ इन द नेक्स्ट 2 आवर 50 मिलीग्राम का जो 50% है दैट इज 25 मिलीग्राम बचेगा इन द नेक्स्ट 2 आवर। इन द नेक्स्ट 2 आवर 25 जो मिलीग्राम है उसका 12.5 मिलीग्राम बचेगा काइंड ऑफ इन द नेक्स्ट 2 आवर। ओके, तो ऐसे हर 2 घंटे में जो ड्रग बच रहा है उसका 50% क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है, यानी कि यू कैन से एक्सक्रीट होते चले जा रहा है। तो ऐसा भी एक टाइम आएगा जहाँ पे पूरा ड्रग क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, एंड दैट्स वाई उसको हम क्या बोलते हैं, वो पूरा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बोलते हैं। दस नियरली कंप्लीट ड्रग एलिमिनेशन अकर इन द 4 to 5 आवर्स ऑफ लाइफ। ओके, तो देख सकते हो 50 to 25, 25 to 12.5 ये सभी क्या है, एक दूसरे के 50% से। ओके, एंड दैट्स वाई 50% ड्रग रिड्यूस होता है इन गिवन पर्टिकुलर टाइम। ओके, सी मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अचीव इन द ब्लड and time taken to attain the maximum concentration of that drug, that is called the maximum time. Okay, or T max. C max is a maximum concentration or maximum plasma concentration of the drug, and T max is a time taken of the time taken by the drug to reach the maximum concentration in the plasma. Okay, डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स विच डिस्क्राइब द रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ द ड्रग फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर विद इन द बॉडी। ओके, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन। लीवर से पूरे बॉडी में फैल रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, देयर आर नंबर ऑफ ड्रग विच डायरेक्टली दे आर नॉट गोइंग डायरेक्टली अफेक्टिंग साइट although they are going with the help of some protein molecule or you can say some bounded molecule. तो देख सकते हो many drug bound to the circulating plasma protein such as albumin, lipoprotein, glycoprotein and globulin. तो they this binding reduces the excretion of the drug. Okay, and that's why there is a you can say sustain presence of the drug in our bloodstream with the help of this kind of binding. So there are number of drug they get bind as they get absorbed into the bloodstream. Okay, and these are the binding agent they helping to reach of that particular drug into the affecting site. Okay, so many drug bound to the circulating plasma protein like albumin, lipoprotein, glycoprotein and globulin वगैरह वगैरह. There are few drugs they are circulating in the free forms without bonding in any albumin, lipoprotein वगैरह वगैरह. Okay, तो आप देख सकते हो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव रहते हैं और बाउंड फॉर्म जो रहता है वो इनएक्टिव रहता है। तो प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग कैन बाइंड विद द प्रोटीन एंड प्रोलॉन्ग इट्स एक्शन, ड्रग के एक्शंस को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। एक्ट एज अ टेम्पररी स्टोर ऑफ द ड्रग, स्लो रिलीज फ्रॉम द बाउंड रिजर्वायर, इट डिले द मेटाबॉलिज्म, डिले द एक्सक्रीशन एंड डिक्रीजेस इट्स एंट्री इनटू द सीएनएस। ओके, डोजिंग इंटरवल अगर मैं बात करूँ तो हाउ ऑफन द ड्रग शुड बी गिवन, दैट इज कॉल्ड द डोजिंग इंटरवल। लोडिंग डोज which put the plasma concentration in the therapeutic range. Okay, that is called the loading dose. And maintenance dose means as soon as the half life of the drug they get completed or you can say the drug is eliminated, we have to maintain the drug. Okay, we have to maintain the drug in the body, that is called the maintenance of the dose. Okay, maintenance dose, routine smaller doses to maintain the steady state of the drug. Okay, that is called the maintenance dose. मेटाबॉलिज्म अल्टीमेटली क्या होता है, मेटाबॉलिज्म मीन्स अ काइंड ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग, द कन्वर्जन फ्रॉम वन केमिकल फॉर्म टू द अनदर फॉर्म ऑफ द ड्रग, दैट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। तो लीवर में मेनली ये होता है और साइटोक्रोम P450 ये जो एंजाइम है अल्टीमेटली ये क्या करता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन करता है ड्रग का। मेटाबॉलिज्म के बाद बहुत सारे ड्रग क्या होते हैं, 80% ऑफ ड्रग बिकम इनएक्टिव, और अगर इनएक्टिव फॉर्म वो डिपेंड करेगा ड्रग टू ड्रग, वो वेरी करने वाला है। ओके, तो 80% ऑफ द ड्रग बिकम इनएक्टिव, इनएक्टिव ड्रग बिकम एक्टिव एंड सम ड्रग डू नॉट गेट मेटाबोलाइज एट ऑल. ओके, तो इट डिपेंड ड्रग टू ड्रग विच शुड बी मेटाबोलाइज इन टू द लीवर, वो लीवर को पता होता है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट इनएक्टिव टू एक्टिव या फिर एक्टिव को इनएक्टिव वो अल्टीमेटली वो बायो ट्रांसफॉर्मेट करता है. ओके, तो दैट इज नथिंग बट आवर मेटाबोलिज्म. The majority of drug are metabolized in the liver by enzyme cytochrome P450, and drug may induce active or inhibit these enzymes, that is called as a drug-drug interaction. Okay, तो first pass metabolism means a kind of देख सकते हैं यहाँ पे also known as the first pass effects. तो is a phenomena of the drug metabolism where the concentration of a drug is greatly reduced before it's reach the systematic circulation. Okay, तो जो भी orally जो हम लेते हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, और जो हम IV जो रूट देते हैं वो बाईपास होता है. ओके, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो हम ओरली कोई भी ड्रग लेते हैं, और IV जो होता है वो हमारा बाईपास होता है. ओके, तो आप देख सकते हो जो भी हम ड्रग लेते हैं
वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, बाद में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में जाता है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू लीवर में जाता है, और लीवर में जाने के बाद वो पूरे लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है, और आफ्टर दैट देयर इज अ अब्जॉर्प्शन ऑफ दैट ड्रग इनटू द you can say into the circulation, and after that they reach into the heart. Okay, and heart क्या करता है, पूरे ही बॉडी में उसका सर्कुलेशन करता है. तो रेस्ट ऑफ द बॉडी में पूरे जो स्प्रेड करने का जो काम होता है वो हमारा हार्ट करता है. बट डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म अकरिंग इन द लीवर, एब्जॉर्प्शन अकरिंग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये सभी जो पाथ है दे आर अकरिंग इन द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. एंड बाईपास में क्या होता है, ये सभी से डायरेक्टली आपका जो ड्रग है डायरेक्टली दे आर रीचिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ओके, दैट इज कॉल्ड द बाईपास. ओके, तो सिस्टम दैट अफेक्ट द फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ द ड्रग, they are nothing but enzyme of the gastrointestinal lumens, gut wall enzymes, bacterial enzymes and hepatic enzymes. They are affecting the drug. Okay, and that's why the bioavailability of the drug is get reduced during the first pass metabolism. And bypass metabolism like IV वगैरह या फिर IM वगैरह के क्या होते हैं, इनके जो बायोबिलिटी होती है वो ज़्यादा रहती है कंपेयर विद आवर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग. ओके, तो इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आप देख सकते हो, पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड डोज मेड इनएक्टिव. ओके, बायोबिलिटी कम हो जाती है, एंड ड्रग कन्वर्टेड इनटू द इट्स एक्टिव फॉर्म. Nitroglycerin when given orally, they get totally inactivate in the oral in the liver, and that's why we are giving this kind of sublingually देते हैं हम पेशेंट को. बिलो द टंग हम रखने के लिए बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन के टैबलेट्स व्हेनेवर कार्डियक इशू अराइज. ओके, तो 100% उसका बायोबिलिटी देखने को मिलता है if we are giving sublingually. If we are giving a kind of orally, तो definitely there is a 0% of bioavailability. Okay, तो डिपेंडिंग ऑन द विच पास ऑफ मेटाबॉलिज्म वी आर गिविंग, तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी मैटर करता है कि बायोबिलिटी कितनी होगी. नाउ प्रो ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड इन एन एक्टिव फॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म, जो कि एक्टिव हो जाएगा लीवर में. आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन इन कन्वर्ट टू देयर एक्टिव फॉर्म यूजुअली इन द लीवर एंड डिजाइन टू इम्प्रूव द बायोबिलिटी. ओके, एंड एग्जाम्पल दे सकते हो इनालप्रिल और रैमेप्रिल, ये जो हमारे टैबलेट्स हैं डेफिनेटली ये प्रो ड्रग्स हैं. प्रो ड्रग्स मीन्स इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं और वो दे बिकम एक्टिव. वाई दिस प्रो ड्रग इज शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन द बॉडी, बिकॉज ऑफ देयर इज अ यू कैन से जो बायोबिलिटी होती है वो जो होती है अल्टीमेटली वो बढ़ जाती है विद द हेल्प ऑफ अ प्रो ड्रग. ओके, तो प्रो ड्रग लेने से इनएक्टिव फॉर्म हम लेते हैं ड्रग का, एंड दैट्स वाई डेफिनेटली देयर इज नॉट दैट मच लॉस ऑफ द बायोबिलिटी. ओके, मेटाबॉलिज्म आप देख सकते हो, फैक्टर अफेक्टिंग द मेटाबॉलिज्म, एज मैटर करता है, डिसीज कंडीशन कैसी है. ओके, लीवर डिसीज अगर हुआ है तो डेफिनेटली ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, एंड दैट्स वाई ड्रग जो है डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएगा इनटू द ऑल ओवर द बॉडी. ओके, एंड दे प्रोड्यूसेस अ सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट्स. ओके, इंडक्शन ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम, फर्स्ट पास इफेक्ट्स, competition between the drugs, genetics and environment, these are the factors affecting the metabolism. Excretion, elimination of the drug, आप देख सकते हो यहाँ पे अनचेंज फॉर्म में वो निकल सकता है. रूट ऑफ द एक्सक्रीशन की मैं बात करूँ तो किडनी यूरिन के थ्रू जाता है, एक्सक्रीटिव सिस्टम में यूरिन के थ्रू जाता है, जेटिक सिस्टम में स्टूल के थ्रू जाता है, स्किन वगैरह के थ्रू काइंड ऑफ यू कैन से जो हमारे स्वेट्स वगैरह रहते हैं उनके थ्रू जाता है, लॉस होता है, और टीयर वगैरह के थ्रू काइंड ऑफ टॉपिकल एप्लीकेशन जो हमारे रहते हैं ईयर आई वगैरह में, तो डेफिनेटली टीयर वगैरह के थ्रू वो क्या होता है एक्सक्रीट हो जाता है. ओके, तो देयर आर नंबर ऑफ ड्रग दे गेट एक्सक्रीट इन द वेरियस फॉर्म्स लाइक यूरिन, स्टूल, और यू कैन से स्वेट, और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स. ओके, तो ड्रग its metabolites are irreversibly eliminated from the body with the help of a various forms. Okay, pharmacodynamics is the study of the drug, study of the what the drug does to the body. तो ड्रग का जो इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड द फार्माकोडायनेमिक्स. तो क्वांटिटी देखिए जिस यहाँ पे क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग दैट इज कॉल्ड द फार्माकोडायनेमिक्स. तो ड्रग एक्शन, द सेलुलर प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ड्रग एंड सेल इंटरैक्शन. ड्रग इफेक्ट्स में द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू द ड्रग दैट इज कॉल्ड द ड्रग इफेक्ट्स. ओके, एंड फार्माकोडायनेमिक्स जैसे मैंने आपको बताया कि इफेक्ट ऑफ द ड्रग दैट इज कॉल्ड द फार्माकोडायनेमिक्स. तो ऑनसेट्स, पीक एंड ड्यूरेशन, ये हम ड्रग से रिलेटेड हम ये पॉइंट्स बात करते हैं. द टाइम इट टेक्स फॉर द ड्रग टू इलिसिट्स अ थेरेपेटिक रिस्पॉन्स दैट इज कॉल्ड द ऑनसेट ऑफ द ड्यूरेशन. ओके, सो ऑनसेट ऑफ द ड्रग आप देख सकते हो. ऑनसेट हम कब बोलेंगे, द टाइम टेकन बाय द ड्रग टू इलिसिट्स और टू प्रोड्यूस अ थेरेपेटिक रिस्पॉन्स. ओके, और यू कैन टू प्रोड्यूस अ ड्रग रिस्पॉन्स दैट इज कॉल्ड द ऑनसेट. पीक मतलब क्या, वो जो ड्रग का जो इफेक्ट है
ओके। या फिर वो जो ड्रग का जो यू कैन से उसका जो इफेक्ट अगेन द सेम थिंग्स, उसका जो इफेक्ट्स है वो मैक्सिमम कब पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड द पीक। द टाइम इट टेक्स फॉर द ड्रग टू रीच इट्स मैक्सिमम therapeutic response, that is called the peak. And duration means the time a drug concentration is sufficient to elicit the therapeutic response, okay. तो दैट इज कॉल्ड द ड्यूरेशन, कब तक वो रहता है, दैट इज कॉल्ड द ड्यूरेशन. तो ऑनसेट, पीक एंड ड्यूरेशन दे आर कम अंडर द फार्माकोडायनेमिक्स, ओके. तो देयर आर नंबर ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब हो जाने के बाद ड्रग का जो इफेक्ट्स है वो इफेक्ट्स अल्टीमेटली रिसेप्टर्स, आयन चैनल्स, इंजाइम्स एंड कैरियर क्या करते हैं, वो अ काइंड ऑफ यू कैन से रेगुलेट्स करते हैं. तो रिसेप्टर्स में ड्रग जाने के बाद जो हमारा ड्रग होता है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स में बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने के बाद वो रिसेप्टर्स ओपन होके एब्जॉर्ब होते हैं. एब्जॉर्ब होने के बाद वो अपना एक्शन करता है. इन दैट सेम में आयन चैनल्स भी ड्रग्स के प्रोसेस में ओपन हो जाते हैं. फर्दर देन उसका सेल में उनकी एंट्री होती है. इंजाइम्स वगैरह भी क्या करते हैं, दे अलाउ द सेम थिंग्स, ओके. तो रिसेप्टर्स वगैरह दे सकते हो. What drug can do? So all that drug can do is mimic the physiological activity of the body's own molecules. It block the physiological activity of the body's own molecules. Okay. तो again the same things, जो भी कुछ वहाँ पे you can say इम्प्रॉपर जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसको वो रेगुलेट करता है हमारा ड्रग. द ड्रग हैज़ अ 3 एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड पार्शियल एगोनिस्ट. एगोनिस्ट मीन्स जो भी एक्टिविटी हो रही है वो एक्टिविटी को बढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड द एगोनिस्ट. एंटागोनिस्ट मीन्स जो भी एक्टिविटी हो रही है उस पर्टिकुलर सेल की उसको सप्रेस कर देना वो पर्टिकुलर ड्रग के थ्रू, दैट इज कॉल्ड द एंटागोनिस्ट. एंड पार्शियल एगोनिस्ट मीन्स जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें काइंड ऑफ कुछ लेवल तक रिड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड द पार्शियल एगोनिस्ट, ओके. तो it activates the receptor to produce the sub maximal effect but antagonize the action of the full agonist, okay. तो देख सकते हो यहाँ पे ड्रग प्लस रिसेप्टर्स मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिलेगा, ओके. एंड डिपेंडिंग ऑन द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट. एगोनिस्ट मीन्स सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा, एंटागोनिस्ट मीन्स देयर इज अ रिवर्स इफेक्ट्स, ओके, दैट यू शुड नो. इफेक्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग, सिनर्जिज्म, एडिशन में आप देख सकते हो डबल जो हम ड्रग देने वाले तो डबल इफेक्ट मिलेगा डेफिनेटली. बट देर आर नंबर ऑफ ड्रग, 2 ड्रग विद द सेम इफेक्ट आर गिवन टुगेदर एंड प्रोड्यूस अ रेस्पॉन्स ग्रेटर दैन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड द synergistic effects of the drug, okay. तो 1 + 1 = 3 ये जस्ट एग्जाम्पल लिया गया है. बट डेफिनेटली देर आर नंबर ऑफ ड्रग्स whenever we are combining तो synergistic effect देखने को मिलता है, not the addition of the drug. We are giving the if we are combining that drug definitely synergistic effect देखने को मिलता है, और more than expected जो होता है इफेक्ट देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड द synergistic effect, ओके. इन दैट सेम में पोटेंशियल एंड एंटागोनिज्म ये देखने को मिलता है. एंटागोनिज्म में ड्रग इनिबिट्स द इफेक्ट ऑफ द अनदर ड्रग, यूजुअली द एंटागोनिस्ट हैज नो इनहेरेंट एक्टिविटी, ओके. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट नेक्स्ट थिंग्स आप देख सकते हो यहाँ पे, व्हाट डज द टर्म एडवर्स रिएक्शन रिफर्स टू. तो बहुत सारे ड्रग्स के हमारे अलग अलग यू कैन से रिएक्शंस रहते हैं. लाइफ थ्रेटनिंग रिस्पॉन्स हो सकता है ड्रग का, ड्रग इंड्यूस एलर्जी हो सकती है, हार्मफुल नॉक्सियस इफेक्ट्स होता है बॉडी के ऊपर, या फिर अनप्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स हो सकता है उस पर्टिकुलर ड्रग का. एंड दैट्स व्हाई दे टोटली कॉल एज अ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ओके. तो एडवर्स ड्रग्स इन रिएक्शन इंक्लूड द साइड इफेक्ट्स, the toxicity, allergic reactions, physical dependence and carcinogenic effects. These are the adverse drug reaction, okay. The side effects, toxic effects, drug intolerance and drug tolerance, these are the important definition come under the ADR, or you can say adverse drug reaction, okay. Again the same things, cross toleration, tachyphylaxis, cumulative effects and drug dependence, these are the again the important definition come under the adverse drug reaction. Idiosyncrasy means drug effects यूनिक टू एन इंडिविजुअल, ओके. तो कोई भी ड्रग ऐसा है कि वो उसके लिए बेनिफिट नहीं है, बट डेफिनेटली उन्हें हम क्या बोलेंगे, इडियोसिंक्रेसी बोलेंगे, ओके. तो ये इसके लिए अच्छा नहीं है, ये इसके लिए बेटर नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसके लिए अच्छा नहीं है तो दूसरे के लिए भी अच्छा नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज इडियोसिंक्रेसी, ओके. तो ड्रग एलर्जी, देन ड्रग विथड्रॉवल सिंड्रोम, ऑल दिस कम अंडर द adverse drug reaction. Teratogenicity, mutagenic effects and photosensitivity, again the these are the adverse drug reaction. तो ऑलरेडी एक एडवर्स ADR टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो. ड्रग सेफ्टी में मेनली इसका रहना चाहिए कि हाई थेरेपेटिक इंडेक्स एंड लो थेरेपेटिक इंडेक्स, ये आपको पता होना चाहिए. एंड कोई भी ड्रग की जो इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स है, वो मिनिमल होना चाहिए, ओके. तो मिनिमल लेवल तक कोई भी ड्रग का इफेक्ट रहना चाहिए, ओके.
यहाँ पे देख सकते हो प्रेगनेंसी कंसिडरेशन इंक्रीज maternal heart rate, cardiac output and blood volume may affect the absorption, distribution and effectiveness of the drug, and that's why we are giving a kind of any kind of drug in the pregnancy or the lactation period. हम उसको बहुत ही थिंक करके kind of कोई भी ड्रग देते हैं. There are number of drug which we cannot give to in the pregnancy or the during the kind of lactation period because of having a low absorption or because having a teratogenic effects or because of having a kind of you can say side effects. Okay, so drug may cross the placenta, drug may cross the breast milk, and drug may act as a teratogens. Okay, and that leads to the a kind of congenital anomalies. So that's why we are giving pregnancy consideration में हम a kind of number of things we have divided the A B C D X category. तो कंट्रोल स्टडीज़ इन द प्रेगनेंसी लेस देन 1% देर इज़ अ साइड इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिलता है. तो काइंड ऑफ पेनिसिलिन और एक सेफेलोस्पोरिन ड्रग वगैरह इसके अंदर आते हैं. जितने भी प्रेगनेंसी कैटेगरीज बी में जो ड्रग आते हैं, एनिमल स्टडी शोज नो रिस्क. ओके, इनएडिक्वेट ह्यूमन डाटा, तो डेफिनेटली बी भी हम दे सकते हैं. सी जो कैटेगरी वाले जो ड्रग होते हैं, एनिमल स्टडीज शोज रिस्क, इनएडिक्वेट ह्यूमन डाटा, तो डेफिनेटली ये थोड़े से हायर लेवल के यू कैन से हमारे जितने भी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स या फिर यू कैन से मैक्रोलिड्स की जो एंटीबायोटिक्स वगैरह रहते हैं ना, एनिमल स्टडी शोज रिस्क, बट ह्यूमन डाटा में वो रिस्क करेगा कि नहीं करेगा वो पर्टिकुलर ड्रग, डेफिनेटली वो कंसिडरेशन अभी नहीं हुआ है. बट डेफिनेटली एनिमल स्टडीज़ में ट्रायल्स में ऐसा देखा गया है कि वो काइंड ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करता है, वो इफेक्ट करता है. ह्यूमन डाटा शो रिस्क, एंड दैट्स वाई डी और जो हमारा एक्स जो कैटेगरी वाला जो ड्रग होता है, डेफिनेटली वी आर नॉट गिविंग, बट बेनिफिट में आउटवे द रिस्क. ओके, बेनिफिट में आउटवे द रिस्क. अगर ऐसा रहेगा तो डेफिनेटली वी आर गिविंग द डी कैटेगरी और एक्स कैटेगरी वाला ऑफ द ड्रग ऑल्सो. ओके, अगर मदर को ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सीवियर हैम्पर होने वाला है या फिर मदर को ही बहुत ही सीवियर कंडीशन आ जाएगी अगर वो पर्टिकुलर ड्रग अगर लेंगे, तो डेफिनेटली सपोज अगर कोई ऐसा कंडीशन है मदर की कि फीटस लॉस होगा या फिर फीटस में कंजेनिटल एनोमलीज आएगा, बट मदर जो है वो वेल हो जाएगा, तो डेफिनेटली वी कैन गिव द डी कैटेगरी वाला ऑफ द ड्रग ऑल्सो. ओके, तो बेनिफिट में आउटवे द रिस्क, तो इन दैट कंडीशन वी कैन गिव द डी कैटेगरी वाला ऑफ द ड्रग. बट डेफिनेटली अगेन द अंडर द फिजिकल जो फिजिशियन है उनके प्रेजेंस में, गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन के प्रेजेंस में हम वो पर्टिकुलर ड्रग देते हैं. ओके, तो एनिमल और ह्यूमन डाटा पॉजिटिव फॉर द रिस्क एंड यूज अनवारंटेड. ओके, तो नॉर्मली हम एक्स को एक्सक्लूड ही कर देते हैं, जो हम देते हैं वो डी तक देते हैं, और डी भी हम मोस्टली सी और डी भी मोस्टली हम अवॉइड करते हैं. जो हम फ्रीली जो हम देते हैं ए और बी कैटेगरी वाला हम ड्रग देते हैं. ओके, प्रेडिक कंसिडरेशन आप देख सकते हो, ओरल एब्जॉर्प्शन इनका कम रहता है, दैट्स वाई हम नॉर्मली सिरप वगैरह फॉर्म में देते हैं. ओके, टॉपिकल एब्जॉर्प्शन हाई रहता है, थिनर स्किन रहती है इनकी. ओके, एंड दैट्स वाई टॉपिकल एब्जॉर्प्शन या फिर टॉपिकल एप्लीकेशन जो ड्रग होते हैं इनका बहुत ही जो यू कैन से अमाउंट होता है वो हम कम देते हैं या फिर कम बोलते हैं, बिकॉज ऑफ हैविंग अ थिनर स्किन रहेगा तो मैक्सिमम यू कैन से एब्जॉर्प्शन होगा. देख सकते हैं यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, एंड दैट्स वाई जो काइंड ऑफ जो ड्रग होते हैं वो जल्दी से जल्दी लॉस हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं इनटू द प्रेडिक्स. ओके, जितने भी चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर प्रोटीन कम रहता है, एंड दैट्स वाई जो ड्रग होता है वो प्रोटीन बाउंडेड नहीं होता है, एंड दैट्स वाई फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग दे एलिमिनेट एज फास्ट एज कंपेयर विद आवर बाउंडेड ड्रग. ओके, देयर इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन द न्यूनेट्स. ओके, एंड दे अल्टर द मेटाबॉलिक रेट्स, एंड देर इज एलिमिनेशन, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कम रहता है. तो वेट बेस्ड डोजिंग इज इंपॉर्टेंट इन द पीडियाट्रिक कंसिडरेशन. जेनेटिक कंसिडरेशन में अगेन देर इज ओरल एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, मसल मास कम हो जाता है. ओके, एंड लीवर एंड रीनल फंक्शन अगेन कम हो जाता है. तो डेफिनेटली मल्टीपल ड्रग एंड मल्टीपल डिसीज कंडीशन दे अगेन द affect the geriatric absorption of the drug. Okay, so that is all about for our introduction to the pharmacology. Okay, the important concepts is nothing but the study of the pharmacodynamics and the pharmacokinetics that you should know, and along with that half-life of the drug, bioavailability of the drug, and when we should give the topical application, when we should give the bypass, when we should give the first pass, that you should know. Okay, that is all about for our introduction to the pharmacology.